Hello students, today we start our chapter number 7, a new arrival in Swami and Friends. It is chapter number 7, new arrival means a new birth was there, a new baby was born in the house of Swami. Means Swami is either brother or sister, whatever we see in this chapter. See there, mother had been abed means on the bed for 2 days past. 2 days earlier she was on the bed. I think she was sick or whatever we see later. Swami missed her very much in the kitchen as she was not feeling well or as she was weak or sick. She was not in the kitchen and Swami was missing her and felt uncomfortable without her attentions. And she was unable to pay attention to her son Swami, and Swami was missing her a lot. He was taken to her room where he saw her lying disheveled and pale on her bed. Now he asked someone how is mother and where is she. So someone took him to his mother and she was seeming very pale, like sick. She asked him to come nearer. She asked Swami to come nearer, come closer. She asked him why he was looking emaciated. Emaciated means weak. She asked him why he was looking emaciated, why he was looking weak. As we know, if our mother feels uncomfortable or she is weak, we also get disappointed when we are young. We don't feel good when our mother, our parents are sick. So it happens. And if he was not eating and sleeping well. She asked him if he was not eating and sleeping well. Swaminathan kept staring at her blankly. He did not say anything. He just stared at her mother. Here seemed to be a different mother. He was unable to understand if she was his own mother. He thought that she was another mother. Why? Because she was unable to pay attention on him. That's why he was feeling so. He was cold and reserved when he spoke to her. He did not speak to her frankly. Her appearance depressed him. She was sick. So her dressing was not very good, she was not well dressed or whatever, her appearance was not very good, and that disappointed him because he saw his mother neat, tidy, clean, well dressed and working in the kitchen. So he was not habitual of that appearance of hers. That's why he got disappointed. He was not feeling well. He wriggled himself from her gasp and ran out. He ran out from there. His granny told him that he was going to have a brother. Now he came to know that he was going to have a brother. He received the news without enthusiasm. He did not feel any type of enthusiasm on having such a news that he was going to get a new brother or sister. But in earlier times, in ancient times, the persons used to say that you are going to have a brother. They did not say a sister or what. So he did not feel any type of enthusiasm on hearing that news. यस बेटा, यहाँ देखिए स्वामीनाथन के घर पर एक ऐसा सीन है जहाँ उनकी मदर जो है वो बिस्तर पे मतलब बीमार सी पड़ी हुई है। अब थोड़ा उनका बीमार होते हैं तो हम लोग वेल ड्रेस नहीं होते, नीट एंड टाइडी नहीं होते हैं, है ना, अलग ही मरीज से दिखते हैं। तो यहाँ स्वामीनाथन जो है अब अपनी मम्मी को देखकर तो किचन में नहीं है, मम्मी उस पर अटेंशन पे नहीं कर पा रही है, तो यहाँ वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर उसको उसकी मदर के पास जब ले जाया जाता है तो मम्मी बेड पे पड़ी हुई थोड़ा सा अनटाइडी सी, जैसा हम होते हैं बीमार पड़ते तो अस्त व्यस्त सी अवस्था में होते हैं, ठीक है, बीमार अलग ही समझ में आते हैं। तो यहाँ वो जब अपनी मम्मी को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी मदर जो है, उसकी जो माँ है वो माँ नहीं है जो हर समय किचन में फुर्ती से
काम किया करती थी, उसको बोला करती थी, डांटा करती थी। अब वो बिस्तर पे पड़ी है तो कुछ नहीं कर पा रही है। और स्वामी को ये चीज़ की आदत नहीं थी, वो इस चीज़ का आदी नहीं था, तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अब यहाँ उसकी मम्मी उसको जब पास में बुलाती है तो वो केवल पूछती भी है कि तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो। मम्मी की एब्सेंस में बच्चों का ऐसा होना स्वाभाविक होता है, बच्चे लापरवाह होते हैं, मम्मी पूरा ध्यान देती है। ऐसे ही कुछ स्वामी के साथ हुआ था। मम्मी को ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में तुम बहुत दुबले लग रहे हो, तो क्या तुम सो नहीं रहे हो या खा पी नहीं रहे हो। लेकिन स्वामी यहाँ कोई बात का, उनकी किसी भी बात का उत्तर नहीं देता है, बस उनको ध्यान से टकटकी लगाकर देखता रहता है कि मम्मी कैसी अवस्था में। इसके पहले उसने ऐसी अवस्था में मम्मी को देखा नहीं था, इसलिए उसको बहुत अजीब सा लग रहा है कि मम्मी ऐसी अवस्था में क्यों है। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कह रहा है। उससे लगा कि ये उसकी मम्मी नहीं है, उसकी मदर नहीं है, तो कोई दूसरी और ही है। यानी बच्चे का मन है, यहाँ बच्चे का मन बताया जा रहा है। अब उसकी दादी उसको बताती है कि तुम्हारा एक छोटा भाई आने वाला है। तो मम्मी अवेट क्यों थी? क्योंकि उनका डिलीवरी टाइम शायद पास में था और इस वजह से वो बिस्तर पे थी। ऐसे समय में तकलीफ होती है लेडीज़ को, तो यहाँ पर वो बिस्तर पे इसीलिए पड़ी हुई थी। That night he was allowed to sleep on Granny's bed. अब उस रात पैसेज में जहाँ उनकी ग्रैनी रहती थी, he was allowed to sleep there. The lights kept burning all night. रात भर, वैसे हम सोचते हैं रात भर लाइट्स चलती है, but that night the lights were kept burning the whole night. Whenever he opened his eyes, he was conscious of busy feet scurrying along the passage. जब भी वो जागता या थोड़ा सा नींद से उसकी आंख खुलती तो वो देखता कि वहाँ पर स्करिंग मतलब हरिंग तेजी से वहाँ पर पैसेज है, कुछ चहलकदमी हो रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर पहले ज़माने की बात है, एंशियंट टाइम की, घर पे ही डिलीवरी हुआ करती थी, तो ऐसे हॉस्पिटल भर्ती कोई यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। लेट एट नाइट स्वामीनाथन woke up and saw a lady doctor in the hall. रात में जब उसकी आंख खुलती है, when he woke up, he saw that a lady doctor was there in the hall. She behaved as if the house belonged to her. जनरली होता है जब डॉक्टर्स ऐसे समय में घर पे आते हैं तो वो जिस हिसाब से ऑर्डर दे रही थी, जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी सबको, तो वो तो उसका काम बनता था, फर्ज बनता था, क्योंकि उसको डिलीवरी करानी थी। तो ऐसा लग रहा था दैट हाउस बिलोंग्ड टू हर ओनली। शी एंटर्ड, ऐसा स्वामी को महसूस हो रहा था। शी एंटर्ड मदर्स रूम एंड प्रेजेंटली आउट ऑफ द रूम केम अ मिंगल्ड नॉइस ऑफ विस्पर्स एंड स्टिफल्ड मोन्स। अब अंदर से कुछ ऐसी मिक्स आवाज़ें आ रही थी, धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी। और वो लेडी डॉक्टर अंदर गई रूम में। मिंगल्ड मतलब मिक्स्ड नॉइस, जैसे कि जिसमें कुछ फुसफुसाहट हो, कुछ शिकायतें हो कि ऐसे से ऐसा नहीं किया, ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी बातें थी रूम के अंदर वो हो रही थी। शी केम आउट ऑफ द रूम विद अ सीरियस फेस एंड ऑर्डर एवरीबडी अबाउट। नाउ लेडी डॉक्टर केम आउट ऑफ द रूम in a very serious face, with a very serious face, and ordered everybody to do something. She commanded even father to do something. She commanded even father to do something. यहाँ पर even father मतलब यहाँ स्वामी ने जब से होश संभाला उसने फादर को कमांड करते हुए देखा है। ठीक है, फादर की सब सुनते थे, फादर गुस्सा करते थे, जो भी है जैसा कि होता है अमूमन घर पे, घर का मुखिया, घर के जो जेंट्स बड़े होते हैं, बच्चे ऐसा देखते हैं कि हाँ हमारे पिता का एक अलग ही रुआब होता है, वैसे स्वामी का लगता है। यहाँ इवन इसीलिए लगाया कि स्वामी के लिए ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि वो लेडी डॉक्टर उसके फादर को भी ऑर्डर दे रही थी। तो वो तो बनता था क्योंकि फादर का तो वहाँ काम था, फादर को जो चीज़ें वो लाने बोल रही थी वो फादर को सुनना था। लेकिन स्वामी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई फादर को भी, पिताजी को भी वो आदेश दिए जा रहे हैं, पिताजी को आदेश देने की जो हिम्मत किसी में नहीं होती। He vanished for a moment and reappeared with a small bottle in his hand. फादर जैसा ही सुनते लेडी डॉक्टर कुछ बोलती है चले जाते हैं और फिर एक छोटी सी बॉटल हाथ में लेकर आते हैं, शायद डॉक्टर ने कुछ इंस्ट्रक्ट किया हो। He hovered about uncertainly, जैसे कि आप बेचैनी से चहलकदमी कर रहे हैं। The hushed voice, hurry, seriousness, agitation, hot water, agitation is excitement, hot water and medicine preparations for ushering means bringing, for ushering a new person in the world. दुनिया में एक नए व्यक्ति को, नए पर्सन को लाने के लिए जो हड़बड़ी, जो प्रिपरेशंस, जो प्रिकॉशंस, जो ज़रूरतें लगती हैं, यहाँ वो स्वामी को सब समझ दिखाई दे रहा था। समझ में कुछ नहीं आ रहा, छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं
समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये सब सिचुएशन जो थी, ये सब जल्दबाजी, हड़बड़ी, एक्साइटमेंट जो थी, ये सब एक नए बच्चे के आगमन की थी। Into the world were too bewildering for Swaminathan's comprehension. It was beyond Swaminathan's understanding. What is going on? वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, ये सब क्या चीज़ चल रहा है। वो बस इतना देख पा रहा था कि कुछ हरी है, जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, इंस्ट्रक्शंस है, एक्साइटमेंट है, कोई इधर से उधर दौड़ रहा है, तो ये सब उसकी समझ के परे था। Granny kept asking something of everybody that passed by, and no one troubled to answer her. ग्रैनी की अलग चिंता, बैठे बैठे वो सबसे, बूढ़े लोग हैं, कुछ कर तो नहीं सकते, एक साइड बैठ के पूछते क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है। अब वो पूछती जा रही हर आने जाने वाले से जो वहाँ से पैसे से आ रहा जा रहा है, लेकिन कोई उनकी बात का कुछ उत्तर नहीं दे रहा, क्योंकि उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि उनको क्या समझाएंगे, बताएंगे। हो सकता है उधर वो मरीज को ज़्यादा ज़रूरत हो अभी, तो ऐसे समय में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वॉट डिड इट मैटर? अब स्वामी के लिए क्या बड़ी बात थी, ये सब क्या चीज़ था, कोई मतलब नहीं था। The 5 carpets in Granny's bed were cozy. उसके लिए तो जो 5 carpets उसकी ग्रैनी के बेड पे थे वो बहुत आरामदायक थे, कोजी थे, कंफर्टेबल थे। हर 5 pillows were snug. उसके 5 pillows जो थे वो भी snug, कंफर्टेबल थे। And Granny's presence nearby was reassuring. और साथ में उसकी दादी भी साथ में थी, तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। घर में कुछ भी हो रहा हो, यहाँ तो आराम का बिस्तर है, आराम से सब। उस दिन उसको ग्रैनी के साथ सोने मिला था, तो सब आराम का बिस्तर है, ग्रैनी का साथ भी है। तो जब बड़े लोग साथ में होते हैं तो बच्चे डरते नहीं हैं। तो so he was not afraid of anything, and above all his eyelids were becoming heavy. और moreover उसकी आंखें जो हैं पलके भारी हो रही थी, किस वजह से? नींद। बच्चा है ना, वो आँख खोल खोल के देख रहा है ये कुछ हो रहा है, लेकिन उसको क्या लेना देना, भाई यहाँ बिस्तर बिछा है, दादी साथ में है, डर की क्या बात है। और उसको फिर नींद भी बहुत आ रही थी। What more did he want? और क्या चाहिए? He fell asleep. उसको क्या, बच्चों को जनरली ये सब चीज़ों की पंचायत नहीं होती है, नहीं इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्या हो रहा क्या नहीं, घर में उनको नहीं रहता है। तो यहाँ पर वो गहरी नींद में सो गया। अब यहाँ बेटा सीन चेंज हो रहा है, स्कूल का सीन आ रहा है, ठीक है। ये रात की बात हो गई, अब स्कूल का सीन आ रहा है। द तमिल पंडित विद द सिल्वर रिम्ड स्पेक्टिकल्स सेट अस्क्यू ऑन हिज नोज। तमिल पंडित, तमिल के टीचर, वहाँ पर सिल्वर रिम, ये रिम होती है स्पेक्टिकल्स की, सिल्वर कलर का स्पेक्टिकल ही वॉज वेयरिंग। सेट अस्क्यू मीन्स नॉट इन अ पोजिशन लाइक दिस, okay, set askew on his nose, was guiding the class through the intricacies of Tamil grammar. He was guiding the class, he was teaching the class with the intricacies, means complications of Tamil grammar. He was teaching Tamil grammar, and in that he was teaching complications, he was solving complications of Tamil grammar. The guide was more enthusiastic than his followers. Who is guide here? Guide is Tamil Pandit, who was giving instruction, and followers his students, but students were not paying attention. वो ध्यान नहीं दे रहे थे। पढ़ाने वाला एंथुसियास्टिक था, पढ़ाने वाला बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, पर पढ़ने वाले भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पढ़ने वाले इतने एंथुसियास्टिक नहीं थे। A continual buzz means noise. A continual buzz filled the air. एटमॉस्फेयर में, एयर मतलब एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस सुनकर बातचीत शुरू थी बच्चों की, जैसा होता है होना। टीचर जब पढ़ाते हैं और बच्चे धीमे धीमे फुसफुसाहट में बातचीत करते रहते, तो वो एक जो हमिंग बज आता है ना, वो यहाँ पर शुरू था। बॉयज हैड फॉर्म देमसेल्व्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड कैरीड ऑन प्राइवेट कन्वर्सेशंस। बच्चों के ग्रुप बन गए थे वहीं बेंचेस पे, और वो अपने खुद के पर्सनल टॉक में लगे थे। इधर टीचर पढ़ा रहा है, तमिल टीचर, तमिल पंडित व्याकरण पढ़ा रहा है, ग्रामर पढ़ा रहा है, उसके इंट्रिकेसीज पढ़ा रहा है। यहाँ बच्चे अपनी बातों में मशगूल थे। दे वर टॉकिंग ऑन सम सब्जेक्ट्स और ऑन सम इश्यूज, टॉपिक्स, they were having private conversations. The Tamil Pandit made faint attempt to silence the class by rapping his palms on the table. उसने कोशिश की कि वो टेबल पे अपनी हथेली से थपथपा के बच्चों को शांत कराने की कोशिश करे। He tried to calm those students, but what happened? After a while he gave up the attempt. फिर देर बाद उन्होंने कोशिश भी छोड़ दी, बच्चे सुन ही नहीं रहे, अब उनको भी तो कोर्स करना है, पढ़ाना है, तो उन्होंने कोशिश छोड़ दी। एंड went on with his lecture, और अपने लेक्चर के साथ वो कंटिन्यू किया उन्होंने। नहीं सुनते मत सुनो, मुझे तो अपना पढ़ाना है, ग्रामर व्याकरण, उन्होंने पढ़ाना कंटिन्यू रखा। His voice was scarcely audible. अब इतने शोर में बच्चों को कहाँ उनकी वॉइस सुनाई देगी,
जब सब साइलेंट रहते हैं तब होता है ना, आप लोग के साथ ऐसा ही होता है जब क्लास में आते थे आप लोग, तो यदि कोई पीछे से बोल रहा है या कुछ और कर रहा है तो आपको टीचर्स की आवाज़ नहीं समझ में आती है, उनका पढ़ाना नहीं समझ में आता। अब जब वहाँ ग्रुप बना के पूरे के पूरे बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं तो क्लास में जो बजिंग नॉइस है उसमें टीचर क्या पढ़ा रहा है वो क्या समझ में आएगा, तो वो चीज़ समझ में किसी को नहीं आती। स्केर्सली मतलब हार्डली, इट वॉज हार्डली ऑडिबल, सुनने बहुत मुश्किल से सुना जा सकता था। शंकर एंड a few others sat on the first bench with cocked up ears and busy pencils. अब जो शंकर और दूसरे जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं वो बैठे हुए थे फ्रंट बेंचेस पे और अपने पेंसिल्स लिए हुए, जैसे वो टीचर कुछ बता रहे हैं तो लिखने के लिए। कॉक्ड ईयर्स मतलब अपने ईयर्स खड़े हुए, ठीक है, रेजिंग ईयर्स यानी ध्यान से सुनने की कोशिश करते हुए वो बैठे हुए थे। स्वामीनाथन एंड द पी सेट ऑन द लास्ट बेंच एज यूजुअल। स्वामीनाथन और सैमुअल पी वो लास्ट बेंच पे बैठे थे। आई से पी सेट स्वामीनाथन आई गॉट अ न्यू ब्रदर दिस मॉर्निंग। अब स्वामी बताता है पी को अपने भाई के बारे में कि मुझे लगता है कि मुझे आज, मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरा एक भाई आया है घर में, ठीक है, भाई ने जन्म लिया है। स्वामी द पी वॉज इंटरेस्टेड। अब पी को भी बड़ा इंटरेस्ट आया उसकी बात में, तो वो पूछता है हाउ डू यू लाइक हिम, तुम्हें कैसा लगा तुम्हारा वो भाई। स्वामीनाथन क्या रिप्लाई देता, ओह लाइक हिम, ही इज हार्डली एनीथिंग। अरे क्या वो कैसा पसंद आना है, वो तो समझ भी नहीं आ रहा है। सच अ फनी लुकिंग क्रिएचर, सा अजीब सा दिखता है वो प्राणी। सच अ फनी लुकिंग क्रिएचर, अजीब सा दिखता है वो प्राणी। यहाँ वो स्वामीनाथन होता है, सेट स्वामी, बच्चा था वो भी, है ना। अब उसने तो अब घर में देख रहा है एक छोटा सा बच्चा है तो उसको कैसा लगेगा। शुरू में बच्चे भी थोड़े से ज़्यादा वो नहीं रहते हैं, अटैच भी नहीं रहते हैं और अजीब लगता है हम लोगों को घर में ऐसा कोई छोटा बच्चा, तो क्यूरियोसिटी भी रहती है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है। सेड स्वामीनाथन एंड गेव व्हाट ही थॉट वाज एन इमिटेशन ऑफ हिज लिटिल ब्रदर। अब अपने छोटे बच्चे की वो नकल करके पी को बताने लगा। कैसा, ही शट हिज आईज, उसने आंखें बंद कर ली, जैसे छोटे बच्चों की आंखें बंद रहती है ना, न्यू बॉर्न बेबी की जनरली देखना सोते हुए ही रहते हैं। ही शट हिज आईज, कंप्रेस्ड हिज लिप्स, जैसे उनके ओंठ जो है वो कंप्रेस रहते हैं, दबे बंद रहते हैं। फोल्डेड हिज हैंड्स ऑन हिज चेस्ट, छोटे छोटे बच्चों के हाथ ऐसे उनकी छाती पे से फोल्डेड पड़े रहते हो बच्चे बस। प्रोट्रूडेड हिज टंग, वो जो उनकी टंग रहती है ऊपर कहीं ऐसी चिपकी हुई सी, खोलते भी हैं तो रोते हैं तो देखना आप, तालू में उनकी जीभ ऊपर में लगी हुई वो रोते हैं, वो सब जो उसने देखा वो बच्चे को तो वो बता रहा है। एंड टिल्टेड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अब बच्चों का सर ऐसा 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 होते रहता है ना, टिल्टेड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। द पी लाउड अनकंट्रोलेबली, अब जैसा जैसा वो बता रहा था इमिटेशन करके, वो जिस हिसाब से बता रहा था पी को बहुत हंसी आ रही, भयंकर ही हंस रहा था। बट स्वामीनाथन सेड दिस थिंग हैज अ वंडरफुल पेयर ऑफ हैंड्स, लेकिन एक बात तो है, ये जो चीज़ है थिंग, वो बच्चे के लिए, भाई के लिए क्या बोलता है थिंग, इस चीज़ के ना हाथ बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर प्यारे से हाथ हैं। वो बोलता है सो स्मॉल एंड प्लम, इतने छोटे छोटे और गुदगुदे से, बिल्कुल बच्चों के रहते हैं छोटे छोटे एकदम मोटे मोटू से। यू नो बट आई टेल यू, लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊँ, हिज फेस इज ऑफुल रेड, रेड लाइक चिली, लेकिन उसका जो चेहरा है ना बहुत अजीब तरीके का लाल है, मिर्ची के जैसा लाल है, लाल मिर्ची होती है ना वैसा लाल है। अब छोटा बच्चा है वो तो लाल या गुलाबी तो होते ही छोटे छोटे बच्चे। अब स्वामीनाथन तो शायद पहली बार इतना छोटा बच्चा देखा है तो उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो जो एक्सप्लेन कर रहा है अपने भाई को, जब पी ने पूछा तो इस टाइप से एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दे लिसन टू द टीचर्स लेक्चर फॉर अ फ्यू मिनट्स, टीचर का लेक्चर शुरू है और बच्चों की बातचीत शुरू है, प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने टीचर ने जो लेक्चर दिया तभी पंडित ने थोड़ा सुना। आई से स्वामी, फिर से पी बोलता है स्वामी मैं कहता हूँ दीज थिंग्स ग्रो अप सून, पता है ये जो चीज़ें हैं ना, चीज़ें यहाँ क्यों, वो छोटे छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज, तो ये जो इन्फेंट्स, ये जो चीज़ें हैं ना जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं। पी अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, जल्दी बड़ी। आई हैव सीन अ बेबी दैट वाज जस्ट व्हाट योर ब्रदर इज, मैंने भी एक ऐसा ही बेबी देखा था बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह, जैसे तुम्हारा भाई है ना वैसे ही था वो। बट यू नो, लेकिन तुमको पता है व्हेन आई सॉ इट अगेन ड्यूरिंग माइकलमस, माइकलमस मतलब यहाँ पर एक क्रिश्चियन फेस्टिवल का नाम होता है, लेकिन अभी जब मैंने इसको माइकलमस में देखा आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज इट, अभी उसको देखा, कुछ दिन पहले वो हुआ था और अभी देखा तो मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाया। तो बेटा ये होता है कि जो बहुत इन्फेंट्स जो रहते हैं ना वो
तेजी से उनका चेहरा बदलता है, तेजी से उनके ये सब बदलते फीचर्स, है ना। जब बहुत एकदम न्यू बॉर्न बेबी को देखेंगे और उसको आप 1 महीने या 2 महीने बाद देखेंगे तो आप सही भी नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ वही चीज़ भी बता रहा है कि अभी मैंने उसको देखा तो वो तो मेरे पहचान नहीं है। ये चीज़ें बड़ी जल्दी बड़ी होती है, क्या खुद नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर अब बच्चा है जो देख रहा है वो बता रहा है। तो बेटा ये था इसका न्यू अराइवल, a new arrival. So I think you understood this new arrival. Okay. Now we can start chapter number 8 also, because it is lengthy and the 7th one is very short chapter. So we can finish some portion of 8th chapter and we'll continue that 8th chapter before the examination in our next lecture. So see there, before the examinations. अब examinations के पहले क्या होता है, आप लोगों की क्या स्थिति होती है, आप लोग मतलब स्टूडेंट्स की क्या स्थिति होती है, यहाँ पर वही बताया गया। तो यहाँ in April just 2 weeks before the examination, अप्रैल में जनरल एग्जाम्स होती ही हैं, पहले के ज़माने में अप्रैल में ही हुआ करती थी, अभी थोड़ा ये मार्च का फंडा आ गया, लेकिन पहले बहुत पहले की बात है तो अप्रैल में एग्जाम होती थी, रिजल्ट आता था, मई जून की छुट्टी लगती थी और जुलाई से न्यू सेशन होता था। तो ये अप्रैल का महीना, स्वामीनाथन realized that his father was changing for the worse. He saw that his father had changed. He became worse. He was becoming fussy. Fussy means short tempered, जल्दी ही गुस्सा होने वाले, and difficult, समझने कठिन है कि इनको कब क्या हो जाएगा, कब नाराज हो जाएंगे। इस हिसाब से वो स्वामी को एग्जाम के पहले लगने लगा था। Why he thought so? Because generally it happens when exams come, our parents get strict, and that only happened to Swami. His father got strict and he thought that he was getting fussy and difficult. He couldn't be understood. ऐसा उसको लगता था। He seemed all of a sudden to have made up of his mind to harass his son. स्वामी को ऐसा लगता था कि इन्होंने अपना दिमाग में तय कर लिया है कि अपने बच्चे को परेशान ही करना है। If the latter was seen chatting with his granny, he was told sorely. लेटर मतलब बाद वाला, यानी स्वामी यदि अपनी ग्रैनी के साथ बात करता हुआ दिखाई दे जाता तो उसको एकदम स्ट्रिक्टली, सॉर्टली मतलब सीवियरली, स्ट्रिक्टली समझा दिया जाता है। रिमेंबर बॉय, देयर इज एन एग्जामिनेशन। जैसे हमको भी बोला जाता है, देखो जरा सामने एग्जाम आ रही है, थोड़ा पढ़ लिखो। सीवियरिटी से हमको भी बोला जाता था, बचपन में तो कई डांट खाए होंगे, है ना। योर ग्रैनी कैन वेट नॉट योर एग्जामिनेशन। तुम्हारी दादी से तुम बाद में बात कर लेना, वो वेट कर सकती है, तुम्हारी एग्जाम भी वेट कर सकती है ना। एग्जामिनेशन आई और चली गई, रह जाओगे। If he was seen wandering behind his mother, अब यदि कभी वो अपनी मदर के आगे पीछे दिखाई देता घूमते हुए, बच्चे होते हैं मम्मी के भी आगे पीछे घूमते हुए दिखाई देते हैं, मम्मी ये खाना, मम्मी वो खाना, मम्मी क्या कर रहे हैं, दुनिया की बातें। He was hunted down and sent to his desk. He was scolded, उसको स्कोल्ड कर दिया जाता और उसको अपनी उसकी डेस्क जो पढ़ने की थी वहाँ पर पापा के द्वारा भेज दिया जाता, डांट पटक के। If his voice was heard anywhere, उसकी आवाज़ कहीं भी सुनाई देती स्वामी की। आफ्टर द ताल्लुक ऑफिस गोंग, गोंग मतलब बेल, एक बड़ा सा बेल जो ताल्लुक ऑफिस में बड़ा सा बेल बजता था, वो यदि 9 का टाइम बजा देता तो अ कमांड वुड कम फ्रॉम हिज फादर्स रूम। पिताजी के रूम से आवाज़ आ जाती, वहाँ से चिल्लाते बोलते, स्वामी व्हाई हैवंट यू गॉन टू बेड येट? स्वामी तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए? यू मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टडी अ बिट। जल्दी सो, जल्दी उठना और थोड़ी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग की पढ़ाई अच्छी होती है। This was a trying period in Swaminathan's life. This was a very difficult trying period, difficult time in Swaminathan's life. One day he was piqued enough, piqued मतलब irritated, चिड़ा हुआ था, enough to retort, इतना चिड़ा हुआ था कि उसने अपने पापा का प्रोटेस्ट किया, पिताजी का प्रोटेस्ट किया। क्या बोलता है, Why are you so nervous about my examination? पिताजी आप मेरे एग्जामिनेशन के समय इतने नर्वस क्यों रहते हैं? उसके फादर बोलते हैं, सपोज यू फेल, तुम फेल हो गए तो आई वॉन्ट। स्वामी बोलता है, नहीं मैं फेल नहीं होऊंगा। ऑफ कोर्स यू वॉन्ट इफ यू स्टडी हार्ड एंड आंसर वेल। हाँ, फेल तो नहीं होगे जब पढ़ोगे और अच्छे से आंसर लिखोगे एग्जाम में। सपोज यू फेल एंड ऑल योर क्लासमेट्स गो अप लिविंग यू बिहाइंड। मान लो तुम फेल हो जाते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स पूरे तुमको यहाँ छोड़ के अगली क्लास में एंटर हो जाते हैं, फिर क्या होगा? ऐसे ही हमको भी डराया करता था ना कि तुम फेल हो गए तो तुम्हारे सब साथी आगे बढ़ जाएंगे और तुमको चिढ़ाएंगे। तो ये डर उसके पिता बता रहे हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग जस्ट व्हाट यू लाइक ऑन द वेरी डे योर एग्जामिनेशन क्लोजेस।
ये सब तो तुम उस दिन भी कर सकते हो जब तुमको ये घूमना है, दादी से बात करना है, ये सब तुम तब भी कर सकते हो जब तुम्हारा एग्जाम का लास्ट डे होगा, तब से करना है जितनी मस्ती करना है और जो जो करना है। यहाँ उनके फादर बोलते हैं। स्वामीनाथन रिफ्लेक्टेड, स्वामीनाथन अब उसको दिमाग में विचार आता है। सपोज द पी मनी राजम एंड शंकर डेजर्टेड हिम, मान लो इन लोगों ने उसको छोड़ दिया, डेजर्टेड मतलब लेफ्ट हिम एंड ऑक्यूपाइड सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे में था, अब ये सेकेंड डे में यदि वो चले गए मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो क्या होगा? हिज फादर वाज राइट, पिताजी तो सही कहते थे। एंड देन हिज फादर ड्रोव होम द पॉइंट, फिर उसके पिताजी का कंटिन्यूअस बोलना, ये इसके दिमाग में बात आई स्वामी के, फादर ने कंटिन्यू किया। सपोज ऑल योर जूनियर्स इन द 5th स्टैंडर्ड बिकम योर क्लासमेट, मान लो तुम्हारे जितने जूनियर्स हैं 5th स्टैंडर्ड के आ गए तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे क्लासमेट बन गया और तुम वहीं के वहीं बैठे हो, अगली क्लास में नहीं प्रमुख हुए, तो क्या होगा? उसके पापा कंटिन्यू कर रहे हैं। स्वामीनाथन सैट एट डेसिमल्स फॉर एन आवर, स्वामीनाथन स्टार्टेड थिंकिंग एंड ही थॉट अप टू हाफ एन आवर, आधे घंटे तक इसी बात पे सोचता रहा कि सही बात है, पिताजी तो सही कह रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स पूरे आगे बढ़ जाएंगे और जो छोटे बच्चे हैं प्रीवियस क्लास के वो मेरे क्लासमेट बन जाएंगे, तो कैसा होगा, सब तो चिढ़ाएंगे। तो यहाँ स्वामीनाथन को सोच पड़ जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन बाय।